Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today I am going to deliver a lecture on chapter 1, that is the fundamentals of operational amplifier, and today's topic of discussion is transfer characteristics. The course outcome for this course as use op-amp in linear integrated circuits. This linear integrated circuit consists of many applications, and in that application we have to use the op-amp. So how to use the op-amp for that particular application with their specification and the characteristics we will study here. Chart shows the CO and PO mapping. This is a CO1 and there are total 7 POs. How this CO1 getting mapped with the PO1, PO2, 3, 4, 6 and 7 we will discuss before. We have discussed before. So this PO1, 2, 3 and 4 getting mapped with the CO1 with however PO6 and 7 getting mapped at the second level with CO1. The learning outcomes. After the completion of this course, students will be able to. आप क्या समझ सकते हो? तो सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द वोल्टेज ट्रांसफर कर्व. वोल्टेज ट्रांसफर कर्व क्या होता है और व्हाई वी यूज वोल्टेज ट्रांसफर कर्व फॉर द ऑप एम्प. देन ड्रॉ आइडियल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प. उसके बाद में उसके आइडियल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हो. तो these are the learning outcomes for this course. Now starts with the voltage transfer curve. क्या होता है voltage transfer curve? देखो, it is a graphical representation of change in output voltage to the change in input voltage. As we know that it's op-amp having the two terminals which consist of the input voltage and however the one terminal which consists of the output voltage. जब भी अपन कोई भी input देते हैं तो that input consists of the two terminal, that is the inverting and the non-inverting terminal. जैसे ही आप लोग उसको इनपुट दे रहे हो तो इनपुट के हिसाब से आप लोग जैसे जैसे सपोज आप यू आर गोइंग फॉर द आइडियल ऑप एम्प. आइडियल ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हैं. तो क्या होता है आइडियल ऑप एम्प? आइडियल ऑप एम्प कंसिस्ट ऑफ द टू इनपुट्स एंड द वन आउटपुट्स अलोंग विद द टू पावर सप्लाई. बराबर है. जब भी आप लोग आइडियल ऑप एम्प को यूज करते हो तो आइडियल ऑप एम्प यूज करते टाइम यू आर कंसिडरिंग द टू इनपुट वोल्टेज, राइट. टू इनपुट वोल्टेज अगर कंसिडर कर रहे हो आप लोग तो यू आर गोइंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन दैट टू इनपुट voltage. That's why that ideal op amp also known as the differential amplifier. We will study already. We have studied it. So, तो ये जो differential amplifier है, that differential amplifier consist of gain. क्या होता है उसका? Consist of gain. अगर gain कैलकुलेट करना है तो you have to mention that output voltage along with the differential voltage. और जैसे ही आप लोग आउटपुट वोल्टेज को कंसीडर करते हो तो जैसे आइडियल ऑप एम्प को अगर मैंने कंसीडर किया तो आइडियल ऑप एम्प का जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज द इंफिनिटी. और अगर मैं प्रैक्टिकली अगर सोचूंगी तो मेरा आउटपुट वोल्टेज कभी भी इंफिनिटी नहीं आ सकता. दैट्स व्हाई आई हैव टू कंसीडर द सम वैल्यूज एट द इनपुट साइड जिसके वजह से मेरा डिफरेंशियल वोल्टेज की वैल्यू कुछ आ सकती है. Then and then I will consider the output voltage, right? So let's start with the transfer curve. For ideal voltage transfer curve, the output offset voltage is assumed to be 0. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Output offset voltage assumed to be 0. जब तक कि आप लोग आउटपुट वोल्टेज को 0 कंसिडर नहीं करोगे तब तक कि आप लोगों का कर्व ड्रा नहीं होगा. तो देखो, for differential voltage is equals to 0 as well as the output voltage is equals to 0, then आपका output offset voltage किसका? कर्व का 0 रहेगा and then you will be able to draw the voltage transfer curve. So this diagram shows the voltage transfer curve. देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि वो output voltage and the input voltage. This is a differential voltage and this is a output voltage.
Differential voltage, this is nothing but the VD, and the output voltage, this is nothing but the VO, right? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि whenever we are going for the ideal op amp, जब भी मैं ideal op amp के लिए जाऊंगी तो मेरे ideal op amp का आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, रहना चाहिए, रहता है इंफिनिटी, और जिसके कारण इंफिनिटी जैसे एनी नंबर अपॉन जीरो, एनी नंबर अपॉन जीरो इट बिकम्स जीरो, बराबर है। बट वही अगर आप लोग इंफिनिटी को कंसीडर करते हो तो जीरो अपॉन एनी नंबर इंफिनिटी आने वाला है, बराबर है। तो ऐसे आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कंसीडर करना है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे जीरो से कंसीडर किया, ठीक है, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया दिस कर्व, जैसे जैसे आप लोग आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका बढ़ने वाला है। बट एक लेवल आएगी प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के टाइम पे कि आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ने वाला है, बराबर है। तो इट इज गोइंग फॉर द इंफिनिटी साइड, मतलब ये कर्व इंफिनिटी है। इंफिनिटी होने के कारण आप लोगों को पता है कि आपका आउटपुट वोल्टेज फॉर द आइडियल ऑप एम्प ऑलरेडी इंफिनिटी, तो ये क्या करेगा, जब तक के सैचुरेशन रीजन तक के जाने वाला है तब तक वो आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएगा। देन आफ्टर गोइंग फॉर द सैचुरेशन रीजन, जब पॉजिटिव सैचुरेटेड हो रहा है तो आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है। बट एक चीज, जैसे ही आप लोगों का मतलब जो सैचुरेटेड वोल्टेज है वो अगर कम कम होते जाता है आपके ओरिजिनल वोल्टेज से, तो आप लोग इंफिनिटी साइड पे जा रहे हो। तो आप लोगों का यहाँ पे देखो नॉन लीनियर सैचुरेशन वोल्टेज के लिए आपका स्लोप ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होते जा रहा है, राइट। देन वही अगर मैं निगेटिव सैचुरेशन के लिए जाऊंगी तो जैसे जैसे मेरा डिफरेंशियल वोल्टेज है यहाँ पे, देन गोइंग फॉर द आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज कम कम होते जा रहा है एंड एक पर्टिकुलर रीजन तक के, मतलब जैसे इंफिनिटी वैल्यू आ रहा है इट बिकम्स अगेन स्ट्रेट। तो दिस इज अ वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज अ आइडियल ट्रांसफर कर्व फॉर प्रैक्टिकल ऑप एम्प, दिस इज अ आइडियल ट्रांसफर कर्व फॉर द प्रैक्टिकल ऑप एम्प। और जैसे ही आप लोगों ने देखो, मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को एक निकाल के दिखाती हूँ तो दिस इज आप लोगों का क्या है, दिस इज नथिंग बट योर लीनियर रीजन। ये क्या है, दिस इज अ लीनियर रीजन, लीनियर ऑपरेटिंग रीजन। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी सपोज आप लोगों का ये V, ये इन निगेटिव मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज है, दैट इज V in, V और ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज है V in, बराबर है। दिस इज अ पॉजिटिव वोल्टेज, then this is a positive saturated voltage and this is a negative saturated voltage। तो देखो सबसे पहले अपन इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। सपोज दिस इज आवर जीरो, suppose this is our 0 and this is a A point, this is a A point and we will consider this point as a B, this point as a B। तो देखो सबसे पहले कि whenever the circuit becomes between points 0 to B को कंसीडर करते, ऑप एम्प इज इन एक्टिव मोड। क्या करना है, आप लोग अगर इसको कंसीडर करते हो फ्रॉम पॉइंट 0 टू पॉइंट B, तो ऑप एम्प इट इज इन एक्टिव मोड, बराबर है। एक्टिव मोड में है मतलब क्या है, दिस इज अ आइडियल ऑप एम्प, और आइडियल ऑप एम्प है तो इट इज हैविंग अ गेन विच विल कंसीडर एज अ VO इज इक्वल्स टू, VO इज इक्वल्स टू मतलब उसका गेन रहेगा कुछ, तो अपन मैं इसका आउटपुट वोल्टेज निकालूंगी, VO इज इक्वल्स टू AD into VD, sorry AV voltage gain into differential voltage VD, right। VO is equals to AV into VD। वही अगर अबोव पॉइंट B VO is restricted to VSAT, जैसे ही पॉइंट B के अबोव हो जाने की वो रिस्ट्रिक्टेड है VSAT, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, इंफिनिटी हो रही, तो इट बिकम्स अ नॉन लीनियर सैचुरेटेड रीजन में आ चुका है। देन वी विल गो फॉर द 0 to
A 0 to ये निगेटिव एक्टिव मोड में है, दैट्स वाई ऑप एम्प विल इन द निगेटिव सैचुरेशन। बराबर है, प्रोसीजर सेम रहेगा बट ये निगेटिव सैचुरेशन में वर्क करेगा, ये पॉजिटिव सैचुरेशन में वर्क करेगा। देन ये हो गया। अभी लीनियर रीजन क्या होता है, देखो द रीजन बिटवीन पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, द रीजन बिटवीन point A and the point B, from this point to this point it is called as a linear region, where the output is proportional to the input, where output is proportional to the input, which is also used for the linear amplification, that is it is in the closed loop amplifier. Clear? Then we will go for the saturation region. Saturation region में क्या होता है, the region below point A and above the point B, the region below the point A and above the point B, it is called as a saturation region. I hope everyone understand what is the linear region and what is the saturation region. How it is from point 0 to point B your op amp gets working, and from point 0 to point A this op amp works in the negative saturation region. So this is all about the voltage transfer curve. Most important question for the 2 marks which will ask in the exam, that is the draw the voltage transfer curve for the ideal op amp. You have to draw this diagram along with this all these points to consider from point A, point B and draw the linear region for this voltage transfer curve. So the output VO, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, output VO is directly proportional to the input only with range A or B. In this region, the op amp behaves linearly. There is a little bit distortion of the amplifier. बराबर है? That's why it is called as a linear region. I have already told you. If the inputs are outside this linear region, then saturation occur. अगर आप लोगों का input linear region के बाहर जा रहा है तो that is a saturation region. वहाँ पे saturation आता है, which is called as a saturation region. That is output is close to the maximum value or it can have, that is Vs or Vh. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ही point B को cross करेगा your output going towards the infinity side. जैसे कि ideal का op amp का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, इंफिनिटी होता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी विल गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज और वी विल गोइंग टू कंसीडर द आउटपुट वोल्टेज. सो if the inputs are outside this linear region, then saturation occurs, and that is output is close to the maximum value it can have, that is Vs or minus Vh. So this is all about the voltage transfer curve of op amp. So this lecture summarizes with, क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले कि वोल्टेज ट्रांसफर कर्व क्या होता है और उसके आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ ऑप एम्प को कैसे ड्रॉ करना है, ये भी हमने पढ़ा है. So thank you so much for listening this lecture. In the next lecture we will study about op amp configuration. Thank you so much.